Hello everyone. Am I audible to all of you? Yes, so Yes, sir. Okay, fine. So Yes, very sir. good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. good afternoon, sir. Okay, my dear. So without taking much more time, let's begin. Okay. So first of all, let's finish the job. We were talking about the common name system, right? After that, we will start that is IUPAC system. All right. Okay. So let's move ahead. As already told you, right? As already told you, we can classify we can classify common name system that is based on functional groups as well. All right, my dear. Okay. So now common names based on functional groups. It is quite important once again. So let's begin. Okay. First of all, common name system. Yes, my dear. That is containing terminal functional groups. All right. Okay. So we have to make a table, right? So here is the number of carbon atoms. All right. And here is the prefix. Okay. So please pay attention, right? Number of carbon atoms and we have to use a prefix. So for C1, we have to use that is form. Please attention, form. All right. For C2, we have to use that is acid. Acid. All right, my dear. And up next for C3, we have to use that is propione. Propione. All right. For C4, that is 4 carbon unit, we have to use butyl. All right. Butyl. And up next for C5, 5 carbon unit, we have to use Valer. Okay, my dear. ठीक है. So first of all, तो ये after that, one another type of special carbon unit, that is स्पेशल कार्बन यूनिट. प्लीज आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहो. इट वुड बी फॉर बेटर एंड कन्वीनियंट, क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल डाउन अप नहीं करूंगा. सो प्लीज आप एक बार नोट करो. C3 मीन्स 3 कार्बन यूनिट, माय डियर. ऑलराइट. Propione, IONA. Yeah, so it is Yes. known as propione, Yes. right? Propione, right? We are talking about that is common name system, my dear. Okay, हम एक परसेंट कॉमन नेम सिस्टम की बात कर रहे हैं. आर यू गेटिंग? कॉमन नेम सिस्टम है. अभी हम लोग IUPAC की बात नहीं कर रहे. ओके ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश द जॉब. उसके बाद में मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे आऊंगा. रेस्ट एश्योर्ड. Then special carbon unit and we can use prefix, right? So special carbon unit, however you are familiar with it. All right. So special carbon unit, that is once again this one. This one is known as acryl. Okay. Acryl is equivalent to vinyl. Remember? Vinyl. It is equivalent to vinyl. All right. After acryl, another type of unit, that is this one. Okay, my dear. And we will use in this case, that is after acryl, next one is croton. Croton. All right. After that, one another unit, that is cinem. This one, right? That is cinem. All right. And last but not the least, one another type of unit, this one. Okay. And we have to use for it, that is pyru. Okay, that is pyru. All right. So these are some special kind of units. All right. So please note them down. Okay, finish. Acryl or vinyl. All right. So sometimes it is known as acryl. So acryl, croton, cinem. All right, pyru. So मैं आपको काफी होमवर्क देने वाला हूँ. आप आराम से घर पे बैठ के अपनी कोई भी आई मीन नोमेनक्लेचर का बुकलेट लिख सकते हो घर पे बैठ के. नो इशू एट ऑल. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश द फॉर्मेलिटी.
So after the prefixes, right? ये common prefix है, that is form for 1 carbon, acid for 2 carbon, propione for 3, butyl for 4, and valer for 5 carbon. Am I right here? Okay. Anyway, so now let's move ahead. Now I'm making here a table, right? Table of functional groups. All right, my dear. So please pay attention. Note them down. Here is the serial number, terminal functional group. This one is the terminal functional group. All right. And this one is, that is suffix. All right, my dear. So please pay attention. That is number 1. Okay, what about it? Whatever you have in mind, please break the silence. आप मुझे बताते रहो, क्योंकि तो आपको पता होगा बहुत कुछ. This one, that is known as carboxylic acid, isn't it? Carboxylic acid. Already I told you. All right, my dear. Okay, and we have to use suffix as, that is ic acid. All right, please pay attention. Ic acid. ठीक है, मैं डैश यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सफिक्स. और अगर मैं डैश ऐसे लगाता हूँ, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीफिक्स. एम आई राइट? ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 2. So after carboxylic acid, we have to use suffix as ic acid. All right. What about next? What about this? Name, please. This one I'm talking about. All right. This one is the attachment I'm showing here. All right. This one is, that is attachment. All right, my dear. Any kind of alkyl group, right, may be attached. It doesn't matter. So what about the name of it, by the way? Anhydride. Please note them down. Okay. Less you should forget it. बाद में मैं scroll up down नहीं करूँगा. So anhydride. All right, my dear. Anhydride, and we have to use suffix as ic anhydride. All right. I take some examples. Rest assured. Okay, my dear. Now third, that is, what about it? This one. Here is this. All right. What about it? Ester. Remember? That is ester, and we have to use, that is O8. Am I right here? O8 as a suffix. Then 4. What about the name of it? This one, that is amide, isn't it? Amide. Okay, my dear. And we have to use suffix as usual, that is amide. No special kind of suffix in this case. Okay. Then fifth one, after amide, what about it, my dear? This one, that is acyl chloride. All right. Acyl chloride. Okay, and we have to use suffix as aryl chloride. All right. Aryl chloride. Then sixth one, that is this one. What about the name? Yes, aldehyde. Aldehyde, and we have to use suffix as aldehyde, right? Non-specific suffix once again. All right, my dear. Next, 7 number. Okay, so these are the major functional groups I'm mentioning here. Okay, after aldehyde, one another, that is C triple bond N. What about the name? हाँ बोलो भाई, नेम बताओ इसका. Cyanide, isn't it? Cyanide, or that is nitrile. Okay, my dear. We have to use suffix as usual, cyanide or nitrite.
All right. Now last 8. Now it is, that is N triple bond C. All right. This one is isonitrile or isocyanide. All right, my dear. So isocyanide or isonitrile. All right, dear. As usual, similar. So इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, ठीक है, ये क्वाइट सिंपल है. Sir, all of these are radicals. I beg your pardon? Sir, ये सब भी radicals है. Not really so. These all are functional groups. I'm mentioning here that is FG, functional groups. My dear, functional groups. These are not radicals. We have already mentioned all kinds of radicals in last lecture, right? हमने किया था ना, alkyl radical है, alkenyl, alkynyl, right? Allyl, vinyl, benzyl, propargyl. Remember? Yes. So these all are functional groups, not radical. Please, radical का attachment कहाँ पे होगा? Let me know. ये है ना, यहाँ पे अटैच होगा रेडिकल, ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ. ऑलराइट माय डियर. सो ये अटैचमेंट किसका है? रेडिकल का है, राइट? Yes. तो आप इसका नेम कैसे लोगे? आई मीन नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका? जैसे अगर मैं इसका कॉमन नेम लेता हूँ, चलो लेट मी फिनिश द फॉर्मेलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ माय डियर. सो इट इज आइसो, यस प्लीज, साइनाइड. वेट अ बिट, मैं बहुत सारे नेम दूंगा, रेस्ट इश्यू. Isocyanide or isonitrile. Okay. So when we have to use nitrile or isocyanide, we will talk about it. Rest assured. Now, what about the name? हम इसका naming कैसे कर सकते हैं? So please pay attention. We can name them as, that is common name. Common name equals to, please pay attention, common name equals to prefix plus suffix. That's it. Okay. बस ये, right? We have to put prefix then suffix and ultimate name known as, that is common name. Okay my dear, इतना सिंपल है, ठीक है. Now after this formality, now let's talk about a few more precise examples. अभी मैंने कॉमन नेम सिस्टम के कुछ एग्जांपल दिए थे लास्ट लेक्चर में, बट अभी हम कॉमन नेम सिस्टम में आई मीन जो टेबल बनाई है इसको यूटिलाइज करें. ऑलराइट. सो आई एम मेंशनिंग हियर दैट इज केस ऑफ एसिड. ऑलराइट माय डियर. सो एग्जांपल में ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ डिटेल में लूंगा. सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसको अच्छे से समझ लो, इसके बाद में आप अपने आप कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है ना. सो मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज एसिड. ठीक है, ऐसे आप एल्डिहाइड ले सकते हो, एज यू विश, एज यू लाइक, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप ले सकते हो. ओके माय डियर, ठीक है. Yes, sir. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ एसिड. प्लीज पे अटेंशन. बहुत नेम ले सकते हैं हम, पूरी बुकलेट लिख सकते हैं हम, बुकलेट नेम की. ओके, अभी आप देखना जरा, ठीक है. सो इट विल हेल्प यू इन केमिस्ट्री जस्ट लाइक द मैजिक वॉन्ड. ठीक है ना, जैसे जादू की छड़ी होती है ना, कोई इस टाइप से आप नेमिंग वगैरह सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक, बट शुरू में मैं काफी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी जो कि चल रहा है सब. सो केस ऑफ एन एसिड. ऑलराइट, मैं सिर्फ यहाँ पे एसिड का केस मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे आप हर एक केस ले सकते हो. सो प्लीज पे अटेंशन. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. चलो मैं इसको लाइन फार्मूला से डिनोट करता हूँ. ओके माय डियर, ये सब हटा देते हैं हम, सी और वॉट एवर, लाइन फार्मूला लेते हैं. अब तो समझ में आता होगा सब लाइन फार्मूला, ये रहा. ऑलराइट. सो वी हैव टू यूज दैट इज एसिड फॉर 2 कार्बन, है ना. तो अब यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन लगाया तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ओनली 1. ठीक है, लुक एट इट विद एन ईगल आई, बहुत गौर से देखने बस एक बार सीरीज आपको समझ में आ गई, अपने आप कर लोगे आप, राइट. मेरा कोई रोल नहीं रहेगा. रिमेंबर द कॉमन नेम. वी हैव टू यूज, यस प्लीज, फॉर्म. वी हैव टू यूज फॉर्म इन केस ऑफ 1 कार्बन. रेडी? चलो फिर बताओ, व्हाट अबाउट द कॉमन नेम? एक ही कार्बन है,
अरे है या नहीं यार? Yes, sir. Yes, sir. पहले तो प्रेफिक्स लेना पड़ेगा ना। प्रेफिक्स प्रेफिक्स क्या होता है वन कार्बन के लिए? फॉर्म होता है। Formic acid. यस, फॉर्म प्लस इक एसिड। क्वाइट सिंपल हो गया। स्टार्टअप सबको समझ में आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, राइट। फॉर्मिक एसिड मतलब पूरी सीरीज मैंने बना दी। ओके, पूरी सीरीज बन गई अब, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस नाउ? अब यहाँ पे मिथाइल है। ओके माय डियर, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 and 2. 2. वी हैव टू यूज दैट इज एसिड। Acid. बस फिर एसिड प्लस एक एसिड। एक। इसीलिए तो मैंने बोला ये बहुत सिंपल है, बट हमें थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके, क्योंकि एक बार तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। ओके माय डियर, तो आप सबके नेम अपने आप बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो क्या नेम हो जाएगा? दैट इज एसिटिक एसिड। आर यू गेटिंग? क्वाइट सिंपल। ऐसे आप चेन बना दो आगे, ठीक है, कहीं तक भी जा सकते हो आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके माय डियर, चलो फिर यहाँ मैंने ऐसे कर दिया इस बार। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? बोलो। मेथ 8 prop. How many carbon atoms? 1, 3. 3. We have to use for 3 propion. Remember? Yes, please. Yes, sir. प्रोपायोन प्लस इक एसिड। सो फिर तो हमें ऑर्गेनिक में करना क्या है? सीरीज बनानी है, मतलब कोई भी लिंक ऐसा नहीं हो कि मिस हो जाए। ओके, सीरीज वाइज चलना है, बस एक बार हमें वक्त लगेगा, दैट्स इट। फिर कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नेवर। आप किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ लो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज आप इसको जल्दी से बताओ। व्हाट अबाउट द नेम प्लीज? प्रोपायोनिक Propionic acid. Nick. acid. So these are some common names. Am I right here? So now you got the point what I'm talking about. तो आप ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हो। What about the valeric acid by the way? Valer. We have to use? Yes please. So name तो इतने ऐसे लगते हैं कि पता नहीं यार क्या है ये, right? So कितने कार्बन होते हैं वेलेर में? 5. 5. So 1, 2, 3, 4. और ये जो फिफ्थ कार्बन है दैट इज एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी काउंट करोगे। ऑलराइट माय डियर, सो दैट इज नोन एज द वेलेरिक एसिड। वेलेर प्लस इक एसिड, सो वेलेरिक एसिड, ठीक है। सो आप ऐसे ही एल्डिहाइड की सीरीज बना लो अपने आप, बना दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्डिहाइड में ऐसे हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्या ग्रुप होता है? दैट इज CHO। तो स्टार्ट कर देना, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, am I right? And so on so forth. I hope so you got the point. Okay. Now कुछ स्पेशल बात करते हैं, ये तो कॉमन सी बात होगी। You got the point or not? है ना? 1, Yes, sir. 2, 3, Yes. 4, 5 बहुत सिंपल है, वो कुछ नहीं है इसमें, वेरी क्वाइट सिंपल है। ओके, बस आपको एक बार गौर से देखना है इसको, दैट्स इट। कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप बोल के उसे रिवाइज करना है, कुछ रिवीजन नहीं करना, यहीं पे हो रहा है सब कुछ रिवाइज, दैट्स इट। Okay, now let's talk about a few that is special kind of cases. So मैं यहाँ पे इस वाले केस को ले लेता हूँ, this one. Now special kind of compounds. मैंने अभी कुछ स्पेशल नेम दिए थे ना, आप बोलो भाई क्या नेम हो जाएगा? यस प्लीज। इसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं ना, बट मैंने इसका एक और नेम दिया था। क्या नेम दिया था बताओ? Acyl. Acryl. Okay, so this one is the acryl. Okay, plus इक एसिड, तो एक्राइलिक एसिड हो गया। ये सारे नेम्स ना जब आप 12th में जाओगे, जितनी नेम रिएक्शंस आएंगी, मैंने बोला है कि उसमें 80% सिलेबस ऑर्गेनिक का है 12th में, ठीक है। तो बस देख लेना अभी आप, यहीं से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसमें किसी भी टाइप के में बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बेसिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चल सकते हो, ठीक है माय डियर। तो जितनी नेम रिएक्शंस आती हैं उसमें सब में नेम देता है इस टाइप से, कभी कॉमन नेम, कभी आयुपैक नेम। तो जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो एक्राइलिक एसिड बाय द वे, सो एक्राइलिक एसिड वी हैव टू पुट फॉरवर्ड अ सफिक्स दैट इज इक एसिड, ठीक है। ऑलराइट माय डियर, ऐसे आप बना सकते हो। सपोज मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पे, चलो बताओ जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड क्वेश्चन है मेरा। This one is that is acetic. Yes, please.
एनहाइड्राइड। बोलो भाई कैसे बनेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है इसमें? कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले क्या कर देना माय डियर, एनहाइड्राइड लिख देना। दिस वन इज एनहाइड्राइड, इजंट इट? ये रहा, क्वाइट सिंपल, ये रहा एनहाइड्राइड। अब आपको पता है कि एनहाइड्राइड में एसिड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कार्बन एटम्स, ठीक है? तो ये तो ऑलरेडी एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया माय डियर, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल पुट करना है हमें, दैट इज मिथाइल, दैट इज मिथाइल, सो दैट इज द नेम ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है? तो मतलब अगर पेरोटी लगाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग, ठीक है? थाउजेंड्स नेम है, थाउजेंड से भी ज्यादा ऑर्गेनिक में। तो अगर आपने लॉजिक रखा, अपनी सीरीज वगैरह रखी तो बहुत इजी है, लेकिन आप रटोगे, पेरोटी लगाओगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3 CO O CO CH3, बस फिर पढ़ ली केमिस्ट्री, ठीक है? ओके, यू गॉट द पॉइंट? सर तो हम सिर्फ एक एसिड वाले में ही जो कार्बन एटम है वो काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, बाकी किसी में नहीं करते। सब में करते हैं, क्यों नहीं किया हमने? आप यहाँ पे भी देखो, आप मैंने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं किया, यहाँ पे किया तो है माय डियर, किया है काउंट, ये देखो आप, ये रहो, इसको और इसको मिला के तो 2 है ना, ये C2 है ना, 2 कार्बन यूनिट है, और 2 कार्बन यूनिट के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? एसिड ना, यस और नो? ठीक, Yes. तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो ऑलवेज काउंट करना है, ऑलवेज, राइट? तो यू मस्ट बी दूसरी केप्ट तरफ इन भी माइंड। तो सर फिर दूसरी तरफ भी तो 2 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, उनका क्या? Oh my dear, actually this one is a symmetrical functional group by the way, right? वो सिमेट्रिकल है, आप चेक करो, ठीक है? तो उसका फीचर है कि वो डाइकार्बोनिल सिस्टम की तरह है, मतलब उसमें आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, CO CO, राइट? थर्ड भी दिख रहा है ईथर, तो कॉम्बिनेशन है ना माय डियर वो, ठीक है? तो सर आप सिर्फ उसको एक आधे को तरफ नहीं, का लिखता है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? डाई एसिटिक एनहाइड्राइड? नॉट रियली सो, राइट? इट इज नॉट डाई बाय द वे, ओके? ये डाई नहीं है। एसिटिक एनहाइड्राइड मीन COOCO, that is the acidic that is the anhydride system, ओके? तो ये सिमेट्रिकल है, तो हमने एक साइड से अगर हमने Mi रखा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइड भी सेम होगा, ऑलराइट माय डियर? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है ना, वो अलग अलग नहीं है वो, प्लीज पे अटेंशन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक बार डिस्कशन जरूरी है, बस वन टाइम ओनली प्लीज, ठीक है? नहीं तो हम तो ऑर्गेनिक में इसी में रह जाएंगे, फिर अगर माइन्यूट से भी डाउट्स हो जाते हैं तो बस फिर पहली केमिस्ट्री भी रह गया, वो कुछ नहीं हो पाएगा। सो प्लीज आप नोमेनक्लेचर पे अटेंशन दो, ओके माय डियर? ठीक है, अभी तो मैंने शुरू किया, फिर मैं IUPAC के साथ भी कॉमन नेम भी लूंगा, रेस्ट इश्यूज, तो फर्दर रिपीटिशन हो, ओके? नाउ नेक्स्ट, अब सारे ग्रुप्स यहाँ पे लिख दो अब, जो जो मैंने बताए थे। पहले मैंने क्या बोला था? दैट इज एक्राइल, ऑलराइट? एक्राइल, रिमेंबर that is this group is known as, yes my dear, that is acryl, remember my dear, this one is the acryl, so it is acrylic acid. Now let's move ahead, up next is, that is after acrylic acid, what about the crotonic? This one, okay, this one is the crotonic, yes or no? So this group is known as the croton, you know, all right? So we have to count the carbon, हालांकि यहाँ कार्बन यूनिट का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट्स है, ऑलराइट माय डियर? सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द यूनिट, दिस यूनिट इज नोन एज, यस माय डियर, क्रोटोन। तो क्या नाम हो जाएगा? क्रोटोनिक एसिड, इक एसिड। अब आप फंक्शन ग्रुप में एल्डिहाइड लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो क्रोटोनिक एल्डिहाइड है ना, या क्रोटोनल हो जाएगा वो IUPAC में, अल लगाते हैं ना उसी बाद में, मैं सब डिस्कस करूंगा। आई होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? समझ में आ गया सबको? बस फिर Yes. क्वाइट सिंपल है, आप कोई सा नाम ले लो, पायरुविक एसिड ले लो आप, व्हाट अबाउट द पायरुविक एसिड? तो ये देखो कितना डेंजर सा बनता है, ये समझ ही नहीं आता यार ये क्या है, ये एसिड है या कीटोन है, क्या है ये, राइट? सो हम IUPAC में भी आएंगे। सो दिस यूनिट इज नोन एज माय डियर, दैट इज क्रोटोन, दिस वन, ओके? सॉरी, क्रोटोन नहीं, पायरू। So what about the name of it? Pyruvic acid, ic acid, alright my dear? तो ऐसे अगर मैं बोलूँ कि पायरुविक एनहाइड्राइड बनाओ तो इतना डेंजर सा बनेगा ना, ठीक है? सोचोगे यार ये क्या चीज है, तो प्लीज बहुत स्पेसिफिक है ये और सिलेक्टिव है, बस
4-5 लाइन से और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी से मैं बहुत सारे कंपाउंड बना सकता हूँ, मोर देन 100। तो आप हर एक फंक्शनल ग्रुप को लो जितने मैंने मेंशन किए हैं टेबल में, और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। कभी भी फुर्सत मिले 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, 15 मिनट में आप 10-20 पेज भर दोगे आराम से लिख लिख के, और जितना आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर डर भगाना है तो बस एक ही रीजन, आई मीन एक ही वे है उसका, बस जितना मैं बोलता जा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, लिख लिख के, दैट्स इट, हो गया। ओके, नो नीड टू क्रैम इट ऑल। नाउ सो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, बाकी पूरी टेबल होमवर्क ही है, क्यों भाई। चलो मैंने सेकंड केस ले लिया, दैट इज एल्डिहाइड, या फिर आप 1-2 यूनिट और ले सकते हो। आई होप सो नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो सिनामिक एसिड के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट द सिनामिक एसिड? सिनेमिक, दिस वन, ऑलराइट माय डियर। होता है या नहीं, सिनेम, ठीक है। सो दिस वन इज द सिनेम, and we have to put forward suffix as ic acid, so this one is the cinnamic acid। ये सब आएगा 12th में, नेम रिएक्शन, सिनेमिक एसिड बनाएंगे हम, राइट। जब यही नहीं पता सिनेमिक होता क्या है तो क्या बनाओगे फिर। तो अगर नोमेनक्लेचर आपका परफेक्ट है तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम नोमेनक्लेचर से ही प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, आईयूपीएससी नेम देगा या कॉमन नेम में देगा, स्ट्रक्चर देगा ही नहीं। ऑलराइट माय डियर, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज। Anyway, so next one is up next. So after this, that is up next. Now, what about the name of some amines or whatever? कुछ names ले लेते हैं हम, जैसे amines वगैरह के name में ले लेता हूँ, ठीक है। Wait a bit. Is that okay so far? समझ में आ गया? मुझे सारे लिखने हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। क्लियर होगी ना सीरीज? हमें सीरीज में जाना कैसे? बस क्वाइट सिंपल है। अब आप क्या करोगे, घर पे बैठ के आराम से 15-20 मिनट डेली दो आप, ठीक है, लिखते रहो जितने आपको कंपाउंड्स लिखने हैं, जो कभी देखे भी नहीं है आप उन कंपाउंड्स का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट, अपने आप, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज हमें समझ में आ गई। एंड दैट्स इट। सो आफ्टर दैट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप प्लीज मुझे इनके नेम्स बता दो जल्दी जल्दी, ऑलराइट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट a few more precise examples. So first of all, that is this one. What about the name? This one is Me, here is H. As I already told you, in case of heteroatom, we have to put, that is the lone pair. All right, my dear. मैंने कितनी बार बोला है, जब भी heteroatom आएगा, first of all हमें lone pair put करना है। और lone pair always indicates that is the nucleophilic site. Yes or no? It is now electron-rich species. Am I right here? ठीक है, सो कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। व्हाट अबाउट द नेम? चलो नेम बताओ इसका, कॉमन नेम बोलो। भाई 2 मिथाइल है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डाइमिथाइल। और क्या करना है इसमें, एमीन है तो एमीन लिख दिया, डाइमिथाइल एमीन, खत्म कहानी। क्यों भाई, ऐसे नाम आएगा इसका, कुछ भी नहीं है और नेमिंग में, राइट। मैं कुछ और नेमिंग देता हूँ, आई मीन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप नेम फाइंड आउट करो, ठीक है। जैसे ये बनाया SO3H, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, बोलो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2। सो 1 2 2 के लिए क्या यूज करते हो, जल्दी बोलो प्लीज। एथ यूज करते हो, और सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी आ जाएगा, ये हमें पहले ही पता है, एन लिख देंगे, क्यों भाई। सो इथेन, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, सल्फोनिक एसिड। सो इथेन, बस सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं है, थेन सल्फोनिक एसिड। सो नेम बहुत इजी है, बट आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ वो फॉलो करो, दैट्स इट, और एक बार प्रैक्टिस कर लो, फाइनल, ठीक है। और मैं कुछ टिपिकल से नेम दे देता हूँ, चलो लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। व्हाट अबाउट इट बाय द वे, आप इसके बारे में बताओ जरा, ये क्या है? यस माय, यूज किया हमने यहाँ पे, एसिड क्यों नहीं यूज करा? नहीं, इथेन तो कार्बन के लिए यूज होता है ना माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट अबाउट द रेडिकल सिस्टम। मैंने क्या दिया हुआ है इसको,
मैंने फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या लिखा हुआ है, कैसे मेंशन किया हुआ है, SO3H ऐसे मेंशन किया था या नहीं? एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस, sulfonic acid, remember my dear? So here we have to put forward the, that is R group. तो जो R होगा उसका तो आप नेम लोगे ना माय डियर, मैंने बोला है कि प्रेफिक्स प्लस सफिक्स इक्वल टू कॉमन नेम, रिमेंबर? तो फिर हम एसिड और ये सब कब यूज करते हैं, जो हमने अभी अभी नेम्स लिखे थे, 3 कार्बन 2 कार्बन और ये वाले? आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट बाय द वे, कब यूज करते हैं? आई मीन मैंने यूज तो किया है। कौन, आप एग्जांपल बताओ मुझे क्या लेना है, एसिड का? यस सर। सर मेरे को ये क्वेश्चन है कि आपने इसमें एसिड क्यों नहीं यूज करा, यहाँ पे तो नहीं। 2 कार्बन थे। नहीं, मैंने बोला है ना सल्फोनिक एसिड, ये देखो आप सल्फोनिक एसिड, अच्छा एसिटा, ओके ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड, राइट? यस सर प्रेफिक्स में जो लगेंगे। नो 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 नो, राइट, एसिड वाला केस स्पेशल है, राइट, वो अलग चीज है। यहाँ पे जब हमारे पास कॉमन सिस्टम है दैट इज सल्फोनिक एसिड, तो इसका नेम में क्या ले सकता हूँ, ये तो मैंने आईयूपीएसी नेम ले लिया ना इसमें, इथेन, ठीक। तो अगर आप बोलोगे इसमें क्या, एसिड सल्फोनिक एसिड, ये बोल रही हो आप, है ना? यस सर यस सर। एसिड सल्फोनिक एसिड इज नॉट अ कॉमन नेम ऑफ इट, हालांकि आप बोल सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, ठीक है, एसिड सल्फोनिक एसिड बोल सकते हो बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, बट वो एक मतलब कॉमन नेम है नहीं उसका, ओके, आप ले सकते हो नेम, ठीक है डियर? हाँ, इसका बताओ जरा क्या ख्याल है इस बारे में, व्हाट अबाउट इट बाय द वे, ये क्या है, व्हाट अबाउट द नेम? अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज चाहिए, मैंने आपको बताया था व्हाट अबाउट ऑर्थो, मेटा, पैरा, am I right, ipso, remember? यस सर। So let's combine it, चलो बताओ फिर नेम, सोचो जरा, सबसे पहले तो पोजीशन रिकॉग्नाइज कर लो, व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप, ऑर्थो। यस ऑर्थो, फाइनल होगी बात, ऑर्थो हो गया। अब ये फिनॉल है, अगर मैं इतनी यूनिट को बोलता हूँ इसको, तो ये फिनॉल है या नहीं है? हाँ, यस सर। दिस वन इज द फिनॉल एंड दिस वन इज, यस माय डियर, दिस वन इज द सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। हाँ, तो क्या नेम हो जाएगा जरा बताना, क्या शुरू कर दें? सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये हुई ना बात, बस फिर इतना तो सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ भी नेम यहाँ पे दूंगा तो आप उसका नेम आराम से कर लोगे, राइट? सो ऑर्थो को हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं ओ, राइट, इसको ओ भी मेंशन करते हो आप ऐसे, ओ फिनॉल, राइट, सल्फोनिक एसिड, ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मैं एक और पूछता हूँ, क्लियर हो रही बात? फिर मैं आईयूपीएससी में आऊंगा, आईयूपीएससी में हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू डू काउंटिंग, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, meaning we have to specify the exact position with the help of numbering, okay, है ना? कुछ तो पता होगा उसके बारे में आईयूपीएससी, ऐसा तो है नहीं कि आप फेमिलियर नहीं हो, ऑलराइट माय डियर। तो बस फिर उम्मीद करता हूँ मैं कल तक मैं इसको आईयूपीएस नेम तक जितने रूल रेगुलेशन है सारे फाइनल हो जाएंगे, फिर मैं आपको एक डीपीपी भी कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस देने वाला हूँ टेस्ट इश्यू। ओके देन, सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट बाय द वे, इसका नेम बताओ प्लीज मुझे, ये क्या है? बोलो इसका नेम, व्हाट अबाउट द नेम, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, ठीक है, प्लीज स्पीड बढ़ाओ। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाँ यही तो बात है, अब ये मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया, आई बेग योर पार्डन, नियो आयोडाइड। no, neo, you are right, right, neo it is, but neopentyl, where is the pentyl by the way, huh? क्यों, yes or no? So this one is neopentyl, remember my dear, neopentyl iodide। so ये neo है क्या, नियो कार्बन, दिस वन इज नियो कार्बन बाय द वे, है ना, ये नियो कार्बन है, दिस वन इज द नियो कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अ क्वार्टरनरी कार्बन, यस और नो? आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि हाँ सर ये इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो आप ये देख लो ना माय डियर, ये कौन से टाइप का कार्बन है, बोलो प्लीज, क्वार्टरनरी है, राइट? सो दैट टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज नियो
which is directly attached with a quaternary carbon. Yes or no, my dear? बोलो. मैं तो इतना स्लो स्लो बोलता रहता हूँ रोज, है ना? अभी तो मैंने स्पीड पकड़ी का. यस और नो? यस सर। बस फिर तो एक बार तुम्हें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो मैंने जितना बोला है प्लीज आप उसको रिवाइज करो, नोट डाउन कर करके आप रिवाइज करो. सो प्लीज नेम बता दो मुझे इसका. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. यस प्लीज, व्हाट अबाउट द नेम? बोलते रहो प्लीज, ब्रेक द साइलेंस. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? That is fifth one. This one is the sixth. आंसर आया इग्नोर इट. थोड़ी देर के बाद खुद ही बता देंगे सर. क्यों भाई? हाँ, डो नॉट ट्राई माई पेशेंस, राइट? सर बेंजीन अमाइड। हाँ, बस मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि भाई कितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट. आई मीन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बच्चे. हालांकि मैंने जितना भी कोर टॉपिक था ना वही लिया हुआ है. अभी मैं और बेसिक दे सकता हूँ बहुत. तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, प्लीज आप बोला करो. ओके, जहां भी आपको डाउट हो. क्या समझ में नहीं आया था बेंजाइल? कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं जिसको बेंजाइल नजर आ रहा हो? हाँ बेटा, बेंजाइल नजर नहीं आता क्या? बेंजाइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है. दिस वन इज, यस माय डियर, दैट इज बेंजाइल. रिमेंबर, बेंजाइल है. सो दिस वन इज नोन एज बेंजाइलामीन. हाँ या ना? यस। सो बस फिर एक बार आप प्रैक्टिस करो माय डियर. ठीक है, एक बार रिवाइज करो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है. अभी जरूरी नहीं कि बस एक दिन में सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट नाउ? यस सर प्लीज. ये एमाइड क्यों नहीं है, ये अमाइन क्यों है? माय डियर, अमाइड में तो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज अमाइड इक्वल टू CONH2. राइट माय डियर? दिस वन इज नोन एज अमाइड, CONH2. मैंने अभी तो टेबल बनाया. ओके माय डियर? यस। हाँ, तो जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो आप अगर एक एक फंक्शन ग्रुप को पढ़ते रहोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट इफ यू कंपेयर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप. एम आई राइट? तो कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर करना है तो जो मैंने टेबल बनाया अभी, तो आप एक एक दो दो तीन तीन को लो आप एक साथ, नो इशू. जैसे एमाइड कंफ्यूजिंग है विद एमीन, राइट? हाँ, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ सिक्स? इस बार गलती नहीं होनी चाहिए. चलो बोलो बेटा, मैं इतने स्लो स्लो बता रहा हूँ. हाँ बोलो. अब मैं नेम लेके पूछूंगा. अभिनव, बताओ इसका नेम क्या है? अभिनव बोलो माय Yes, डियर. sir. बोलो डियर. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट बाय द वे? if it is benzyl, if it is benzylamine, so what about the name of it? Could you please recognize the system? What about it? हाँ, remember? सर ये हाँ हाँ हाँ. डायनामाइट का शायद से What about it by the way? What about this center? This center is known as, my dear, क्या बोलेंगे इस सेंटर को? सर इसके अराउंड 4 डिफरेंट वो है ना, तो इसका जो फोर्थ एटम होता है उसको क्या कहते थे नाम? कायरल. सेंटर। यस, स्टीरियोजेनिक सेंटर, कायरल सेंटर. वेरी गुड, है ना? कायरल. यस, कायरल बोलते हैं, दैट इज कायरल. और अनदर नेम इज एक्टिव, अनदर नेम इज स्टीरियोजेनिक सेंटर. रिमेंबर माय डियर, राइट? तो भी इसमें कोई बात नहीं है. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? नाउ इट इज नोन एज एक्टिव. एक्टिव, यस माय डियर, जो नेम है इसका वही एक्टिव बेंजाइल. यस माय डियर, एक्टिव बेंजाइल एमीन. यस और नो? है ना? तो ऐसे हम स्लोली आई मीन अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं. ठीक है ना? जब आप फेमिलियर हो जाओगे तो हम स्पीड अप मेथड में करेंगे, फिर मैं इनको कंबाइन कर दूंगा. इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ो. आफ्टर इट बहुत सारे नेम है और. चलो मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ. नेम तो बहुत है, आई मीन ये तो पूरा हो ही नहीं सकता. तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब तक आपका क्लियर नहीं होता तो मैं एग्जांपल लेते रहूंगा. ठीक है? इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सर ऊपर वाले में वो बेंजल नहीं होना चाहिए, बेंजाइल की जगह, क्योंकि ऊपर उसमें तीन अलग अलग कनेक्टेड है CH से, यहाँ पे C से. यस. हाँ, हम बेंजल ले सकते हैं, बेंजल एमीन बोल सकते हो आप इसको.
बट मैंने एक्टिव लगा दिया है, राइट। सो एक्टिव में आप देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, ये ड्यूटीरियम है और ये सिर्फ H है, राइट। तो ड्यूटीरियम क्या होता है, स्लाइटली हैवियर होता है, दैट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो माय डियर, है ना। हाइड्रोजन का आइसोटोप भी तो होता है ड्यूटीरियम। सो हाइड्रोजन Yes, क्या sir. होता है, दैट इज 1H1, ड्यूटीरियम क्या होता है, दैट इज 1H2, ट्राइटियम क्या होता है 1H3, है ना? 1H3. बस, ठीक है। तो आप बेंजल में भी आ सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, ओके। हाँ, इसका नेम बता दो जल्दी से, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट। यस प्लीज, जल्दी से नेम बताओ, मुझे आगे बढ़ने। रिकॉग्नाइज द कोर फंक्शनल ग्रुप, व्हाट अबाउट इट, ये क्या है भाई? कीटोन है या नहीं है? Sir, ketone है. वेरी गुड। सो व्हाट अबाउट द नेम? तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द, दैट इज रेडिकल सिस्टम। अब ये दो रेडिकल लगे हैं इसमें, इस रेडिकल का नेम क्या है जो 2 कार्बन यूनिट है, और इस रेडिकल का नाम क्या है जो 3 कार्बन यूनिट है। मैं डेली बोलता हूँ इस बारे में। Sir, dihexaketone. Vinyl and विनाइल एंड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस वन इज द विनाइल एंड दिस वन इज एलाइल। अभी भी प्रॉब्लम है रिवीजन में, ओके। अब हम जब भी नेम लेते हैं तो ABCD के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। अल्फाबेटिकल, वी हैव टू नेम एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अल्फाबेटिकली, ओके माय डियर। सो पहले दैट इज एलाइल मेंशन करना है, so अल्टीमेट नेम वुड बी दैट इज एलाइल विनाइल, यस माय डियर, दैट इज कीटोन, यस और नो? एलाइल विनाइल कीटोन, एम आई राइट? यस और नो? Yes. ठीक है ना? Yes. सो मतलब पूरा गेम क्या है फिर? हाँ, बस 2 यूनिट है इसमें और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्या है, दैट इज रेडिकल सिस्टम, और मैंने इतनी डिटेल ली है रेडिकल की, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब कुछ मेंशन किया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडिकल का रोल है, और सेकंड वन दैट इज फंक्शनल ग्रुप, बस हो गया फिनिश, कुछ भी नहीं और नेमिंग, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप में अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखता जा रहा हूँ, राइट। तो एक बार मैं IUPAC में फिर से मेंशन करूंगा, तो 3 बार रिवाइज करा दिया मैंने। वैसे जब मैंने डिफाइन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब भी मैंने फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया था। वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स एज वेल एज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन, नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट इज D system, last common name है my dear, that is common names based on position, common names based on positions, right my dear? however मैंने सारी पोजीशन मेंशन कर दी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इप्सो, राइट। तो इन पोजीशंस में हम 2 पोजीशन देखेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट विसिनल एंड जेमिनल बाय द वे। सो प्लीज पे अटेंशन, ये यहाँ से कुछ भी, ये अटैचमेंट क्या है, आज के बाद ये अटैचमेंट में ऐसे करते रहता हूँ, क्या है ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ रेडिकल अटैचमेंट, आर यू गेटिंग? ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर रेडिकल क्या होता है, ठीक है। कितना Yes. रेडिकल मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट माय डियर। तो एक बार आप उसको रिवाइज करो प्लीज, अभी कोई बात नहीं है, अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे भी कि बस अभी नेम ही चाहिए सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है माय डियर। यस प्लीज, व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज 2 मिथाइल ग्रुप्स? यस प्लीज। सो व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स directly attached with the same carbon atom, that is single carbon atom, the relationship is known as, just please fill in the blank. The relationship is known as, बोलो बोलो बेटा, जेमिनल, ठीक है। जेमिनल डाइमिथाइल, क्या बोलते हैं उसको जेमिनल को शॉर्ट में? जैम डाइमिथाइल, ओके माय डियर। तो जरा नेम से आप रूबरू हो जाओ, उसके बाद में स्पीड देखना फिर आप, ठीक है, ठीक है, बार बार तो हम बोलेंगे नहीं। व्हाट अबाउट इट बाय द वे, चलो OH बताओ, यस प्लीज, व्हाट अबाउट द नेम?
ब्रेक द साइलेंस प्लीज। नेम क्या हो जाएगा बच्चे? जैम डाइओल्स। जैम डाइओल्स। ओल किस पे लगाते हैं? दैट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर अल्कोहल। यस और नो? ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इट? हियर इज द मिथाइल, हियर इज द मिथाइल। वंस अगेन अब पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई है। अब यही बात आईयूपीएसी वालों ने सुन ली। अब वो क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेम देंगे। आईयूपीएसी में क्या होता है कि हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है। तो इस पोजीशन को क्या बोलोगे माय डियर आप? 1-1। क्या पोजीशन है? 1-1 पोजीशन है। दो मिथाइल एक ही पोजीशन पे अटैच है, सो 1-1 पोजीशन हो गई। एम राइट? सो जेमिनल पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज 1-1 पोजीशन। ऑलराइट, एग्जांपल लेना है? ठीक है फिर चलो। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? चलो नेम बताओ जल्दी से। अभी आईयूपीएसी नेम बताओ। हाँ जी, शुरू कर दें? चलो बताओ फिर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही कार्बन है यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1,1। यस प्लीज, डाइक्लोरो, है ना? मीथेन। मिथेन, वेरी गुड। तो बस फिर कुछ है थोड़ा ही, क्वाइट सिंपल है वो, राइट? एंड दीज टू क्लोरीन एटम्स, यस माय डियर, आल्सो नोन एज, यस माय डियर, दैट इज जैम डाइक्लोराइड। एम राइट? ठीक है। सो अब पोजीशन हमने थोड़ी बढ़ा दी है, दैट इज 1 and 2। नाउ व्हाट अबाउट द नेम प्लीज? अब बता दो नेम। दैट इज 1 and 2। इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल। विसिनल डाइमिथाइल्स, ओके? एंड विसिनल इन शॉर्ट नोन एज विस डाइमिथाइल। तो जेमिनल, विसिनल, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस आएगा, राइट? वी विल क्लेम दैट जैम डायोल्स आर अनस्टेबल। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना ये जैम है क्या। अनस्टेबल तो बात की बात है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए ना माय डियर, ओके? यस प्लीज। अब और ले लो आप। चलो हो गया फिनिश, ये भी कुछ नहीं था। इसको क्या बोलोगे आप? दैट इज विस डायोल, ओके? विस डायोल, एम राइट? आई होप सो ये क्लियर हो गया। Okay, so geminal, nothing, that is 1-1. What about the position in case of vicinal? That is 1-2. Am I right? 1-2 position होगी. Is that okay? So now, let's move ahead. सर Clear हो एक गया? बार आप हाँ, my वापस dear. रिपीट कर दोगे ये जेमिनल की डेफिनेशन जस्ट, मतलब क्या है, कैसे Why? कंपाउंड Why में not? जेमिनल हम यूज करेंगे? यस सर। Okay, now listen carefully. Okay, मुझे राइट डाउन भी करना है या मैं बोलूँ बस आप राइट डाउन करोगे? Okay? नहीं सर, आप जस्ट बोल दो, When मैं लिख लूंगा। when two atoms or groups, right, है ना, मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे? सेम होंगे। ओके माय डियर, सेम होंगे ना, तभी तो आप जैम पोजीशन बोलोगे। आई मीन दोनों सेम होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे दो अल्कोहल होंगे या दो मिथाइल होंगे, इथाइल होंगे, व्हाटएवर। सो व्हेन टू सेम एटम्स और ग्रुप्स, राइट, व्हेन टू सेम एटम्स और ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन एटम, ऑलराइट, directly attached with a single carbon atom, yes my dear, known as geminal atoms or groups, okay? जब सिमिलर कार्बन से अटैच होंगे। एंड नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड, यस माय डियर, at two different carbon atoms at 1-2 position, right, in 1-2 relationship, okay? Then the relationship known as vicinal. All right, vicinal means 1-2, geminal means 1-1, okay? मतलब सेम कार्बन से अटैच है तो जेमिनल, डिफरेंट कार्बन से अटैच है तो विसिनल। अब आप बोलोगे डिफरेंट क्या? यू मस्ट बी कैप्चर माइंड द पोजीशन दैट इज 1-2 ओनली। सिर्फ 1-2 पोजीशन को ही हम विसिनल क्लेम करेंगे। अगर वो 1-3 होगा तो हम उसको फिर 1-3 मेंशन करेंगे, वो विसिनल नहीं होगा। दैट्स इट, ओके? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सपोर्ट करेगा, ओके?
Up next, so after geminal, vicinal, now let's talk about alpha, beta, gamma, delta, epsilon, whatever. बहुत सारी पोजीशन है. चलो इसको भी फिनिश करते हैं. Okay, so please pay attention. Now up next, सपोज करो मैंने यहाँ से कोई पोजीशन ले ली है, ये पोजीशन मैंने ली है. कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो माय डियर, एज योर विश. ओके, सो दिस वन इज मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट. ओके, तो नेमिंग कहां से शुरू होगी? जब भी हम नेमिंग करेंगे अल्फा, बीटा, गामा, वी नीड अ रेस्पेक्ट. क्या चाहिए मुझे? मुझे रेस्पेक्ट चाहिए. इन विच रेस्पेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, आप किस रेस्पेक्ट में अल्फा, बीटा, गामा कर रहे हो? So I'm talking about that is with respect to the, yes please, ketone group, this group. मैंने इसका रेस्पेक्ट लिया. ओके माय डियर, सो इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं तो कर रहा था अल्फा बीटा विद रेस्पेक्ट टू द कीटोन, आपने कर दिया विद रेस्पेक्ट टू अनदर काइंड ऑफ ग्रुप. बस क्लैश कर जाएगा, आपका नेम आपके साथ, मेरा मेरे साथ. तो प्लीज जब भी आप अल्फा बीटा गामा करोगे, यू मस्ट बी कीप इन माइंड वन थिंग, वी नीड अ रेस्पेक्ट. इन विच रेस्पेक्ट यू आर टॉकिंग. चलो क्वाइट सिंपल है वो भी, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन. ऑलराइट, ये कुछ पोजीशन है बच्चे. ओके, एंड दिस अल्फा पोजीशन इज आल्सो नोन एज, यस माय डियर, दैट इज एडजेसेंट. क्या बोलेंगे इसको? एडजेसेंट पोजीशन. गॉट इट? एडजेसेंट मींस नेबर. ऑलराइट, वो नेबर है उसका. ठीक, सो विद रेस्पेक्ट टू द कीटोन, राइट, nearby position, that is adjacent position, okay, is known as alpha and so on so forth. आगे बढ़ते जाओ आप, क्वाइट सिंपल है. ठीक है, चलो फिर ठीक. अब आप मुझे इसका नेम बताना प्लीज, है ना, देखते हैं आप क्या करते हो. चलो जल्दी से बताओ प्लीज. 1 2 3 4 5. मैंने यहाँ पे एल्कीन लगा दिया है. क्या बोलोगे अब आप इसको? व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? अब आप इसको बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इजंट इट? अनसैचुरेटेड, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी अनसैचुरेटेड बोलते हो. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यस और नो माय डियर? बिकॉज डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे? अल्फा बीटा पे. ओके, नाउ नेक्स्ट, तो जो पोजीशन आप मेंशन करना चाहते हो आप कर लो, नो इश्यू एट ऑल. ओके डियर, ठीक है. अब आप इसकी पोजीशन बताओ जरा, इसमें मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ? ये रहा, है ना? सर तो हम मेरा my स्टार्टिंग के dear. बेंजीन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं, बेंजीन तो क्या है हमारे पास, एक तरह से बेंजीन है क्या यहाँ पे? वो तो रेडिकल है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेमिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. राइट, फंक्शनल ग्रुप तो पीएच क्या है यहाँ पे? वो तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा ही है, वो तो रेडिकल है. यही फिर इसी कंपाउंड का फाइनल नेम है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है. No, 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 no. I'm talking about only that is position, alpha, beta, gamma only. ये उसका फाइनल नेम नहीं है, नहीं है. ठीक है, I'm just talking about the position. You have to recognize what about alpha, beta, gamma, delta, epsilon. That's it. और कुछ भी नहीं है, नेमिंग नहीं है वो, नहीं है नेम. ठीक है, नेम हम बाद में ट्राई करेंगे ना, इसका क्या नेम है, आईपीएससी में आऊंगा मैं, रेस्ट एश्योर्ड. सो व्हाट अबाउट इट? पोजीशन बताओ जल्दी से. अल्फा, बीटा, गामा. And alpha beta condition, that is alpha beta position, always be, yes my dear, conjugated. Remember, conjugated. Okay my dear, conjugated. अरे वो ऐसे चलेगा ना इसके साथ में, इस तरह से जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं that is conjugated. Remember, समझाया था मैंने एरोमेटिसिटी में. ऑलराइट माय डियर, conjugated. सो ये कौन सा हो गया? दैट इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड. तो नेमिंग बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता, बस हमें गौर से सुनना होता है, दैट्स इट. ठीक है, हो गया फिनिश. ऑलराइट माय डियर, अनफॉर्चुनेटली कोई बुक अब तक लिखी नहीं गई जिसमें सब कुछ मेंशन हो. ठीक है ना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा जब आप बुक लिखोगे. ठीक है, आप लिख लो बुक, मैं आपकी हेल्प करूंगा. ओके, ऑलराइट माय डियर. सो नाउ व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन. यस और नो? Now it is known as beta gamma
अनसैचुरेटेड। अब आप पूछोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, मतलब इसका करना क्या है, क्योंकि बाद में आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी बताओगे। जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है वो मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द अनकॉन्जुगेटेड, एम राइट? ठीक है, तो अगर मुझे चांस मिले कि मैं कौन सा अनसैचुरेटेड एल्कीन फॉर्म करूं, राइट, सो माय चॉइस ऑलवेज बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो जितना आप नेम रिएक्शन पढ़ते हो ना बच्चे, नेम रिएक्शन पढ़ते हो ना, आपने सपोज करो 20 नेम रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, इन्वॉल्विंग इनोल इनोलेट व्हाटएवर, ओके, सो उसमें से मैं सच बोल रहा हूँ कि मोर देन 15 में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, राइट, ये प्रोडक्ट बनेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो माय डियर आपको पता तो होना चाहिए ना भाई व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म अल्फा बीटा बाय द वे, राइट? सो अल्फा बीटा पोजीशन क्या होगी, कोई भी कार्बोनिल होगा साथ में, आई मीन कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो वो कंजुगेटेड होगा, राइट? ठीक है, okay then, so this one is beta gamma and so on so forth. I hope so now it is clear, yes or no? क्लियर हो गया? नहीं, एक और Yes. एग्जांपल देने हैं? Okay. तो ठीक है फिर, चलो ये कौन सा था माय डियर, अल्फा बीटा था, एंड दिस वन इज नोन एज बीटा गामा अनसैचुरेटेड, ऑलराइट, कीटोन, इट इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे अल्डिहाइड होता तो नेम क्या होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, क्योंकि हमें मेजरली क्या करना है, फंक्शन ग्रुप का नेम मेंशन करना है, बिकॉज यू आर putting alpha beta gamma or whatever with respect to the any kind of functional group. Okay then, so let me explain you, right? मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है, और मैं उस कंफ्यूजन को क्या करूँगा, दूर करूँगा, रेस्ट एश्योर्ड। यस माय डियर, ये था, ओके, देखो मैंने ये दे दिया, अब आप मुझे इसका नेम बताओगे प्लीज, है ना? चलो शुरू करते हैं, ये हो गया, ऐसा ग्रुप मैंने दिया, सो दैट थोड़ा सा डर भी लगे बच्चों को कि यार ये क्या है। हाँ बोलो, कॉमन नेम बताना है, अभी हमें कार्बन यूनिट से मतलब नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेडिकल, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली पोजीशन, ओके माय डियर, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पोजीशन पूछ रहा हूँ आपसे, चलो बताओ क्या पोजीशन होगी भाई? ऑर्थो। तो मुझे नॉट रियली सो बेटा यहाँ ऑर्थो कहाँ से आ गया? सर आपने बोला वन और 1 और 2 पे जो होता है तो उनका ऑर्थो होता है, 1 और 3 पे मेटा। मैं क्यों यार, कितने मासूम बच्चे हो आप। बेटा वो केस बेंजीन का था, बेंजीन का, ठीक है, अच्छा ये वो ओपन है, बेंजीन का था, ये ओपन है ना? हाँ। ये बेंजीन नहीं है, Closed. राइट? यू मस्ट बी kept in mind if you talk about the ortho meta para ipso, first of all write down the benzene ring, right, and then talk about, ओके, कोई बात नहीं, आप पूछा करो, है ना, हमारा क्लियर होगा ना, ओके माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो ऑर्थो मेटा पैरा इप्सो ऑलवेज बी यूज्ड इन केस ऑफ अ बेंजीन रिंग, ओके, ठीक है, तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलेगा, ओके देन, सो फिर क्या चलेगा, अल्फा बीटा, यस और नो? अब क्या कंडीशन है देखो, अब इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पेक्ट विद, इफ यू टॉक अबाउट द अल्फा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू द एसिड, है ना माय डियर? ठीक है, मैंने कौन सा रेस्पेक्ट ले लिया, एसिड का रेस्पेक्ट लिया, सो दिस एडजेसेंट पोजीशन इज नोन एज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज नोन एज बीटा, यस और नो? या तो यस या तो नो। यस सर। हाँ, सो भाई पहले आप रेस्पेक्ट लोगे ना कि आप अल्फा बीटा करने वाले हो, तो आप किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट हियर विद रेस्पेक्ट टू द एसिड, सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, बोलो, नेम हो जाएगा बच्चे, दैट इज बीटा कीटो एसिड, यस और नो? बोलो जल्दी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप प्लीज आप एक बार इसको रिवाइज करो सारे लेक्चर्स को, कल का भी लेक्चर है, ठीक है डियर? तो कल तक मैं सर काफी फर्स्ट वाले में किस रिस्पेक्ट से लिया था? हाँ हमने कीटोन के रेस्पेक्ट में लिया था, और तो कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं उसमें, कहाँ है बताओ? ओके सर। बेटा ये जो रेस्पेक्ट लिया है हमने अल्फा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू कीटोन, वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास, तो भाई कहाँ है चॉइस बताओ आप? देयर इज नो चॉइस एट ऑल, ठीक है, बट यहाँ मेरे पास चॉइस है, एसिड भी है और कीटोन भी है, राइट? सो आपका अल्फा बीटा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक? सो आई हैव टू मेंशन इट ना माय डियर। तो सर इसका अगर रेस्पेक्टिव हम बोले तो कीटोन ले तो, हाँ तो चेंज कर लो आप, ठीक है, तो बीटा कीटो की बजाय क्या हो जाएगा? हाँ
बीटा एसिड हो जाएगा ना, क्यों भाई? आप चेंज कर लो, रेस्पेक्ट इस बार क्या कर लोगे आप, चेंज करो चलो, लेकिन वो इसका मतलब पर्टिकुलर नेम होगा नहीं, हालांकि आप रेस्पेक्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मैंने बोला है लो आप रेस्पेक्ट। इस बार मैं किस रेस्पेक्ट में नेम देने वाला हूँ, यहाँ पे चल रहे हो जल्दी से, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। सो बेटा ये पूरा पूरा का पूरा है ना फंक्शनल ग्रुप, ओके राइट। तो सर ये बीटा हमने एसिड, कैसे आइडेंटिफाई करा कि कीटो एसिड में पहले उससे बीटा ही लगेगा? नहीं यार, जो भाई जिसका आप रेस्पेक्ट ले रहे हो उसका नियर बाय पोजीशन हमेशा अल्फा होगा। देखो रिमेंबर, चेक करो, ये मैंने क्या समझाया अभी, शुरुआत कहाँ से होगी बोलो? शुरू अगर हमें करना है तो मुझे तो उसका पोजीशन चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट पोजीशन चाहिए, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? ओके, यस सर। सर तो जब अगर हम बीटा एसिड लेते हैं तो फिर हम कीटोन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं मैंने बोला है ना बीटा कीटो, फिर तो कीटोन के बारे में बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, जब हमने सेकंड वाला केस लिया इसमें हमने तो कीटोन बीटा, की रिस्पेक्ट में लिया है। तो सेकंड बीटा वाला, बीटा एसिड कीटोन हो जाएगा ना, क्या हो ओके, जाएगा? बीटा यस एसिड कीटोन, यस राइट? तो आपने भी नेम लिया, मैंने भी नेम लिया, आप भी सही मैं भी सही, बट राइट बोथ ऑफ अस वी हैव टू मेंशन द रेस्पेक्ट इन विच रेस्पेक्ट यू आर क्लेमिंग अल्फा बीटा गामा, क्योंकि आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी ये, लेकिन जब नेम रिएक्शन शुरू होंगी ना और प्रोडक्ट बनेंगे 4-4-5-5, तो हालत खराब हो जाएगी फिर, ठीक? आपको यही नहीं समझ में आएगा यार चल क्या रहा है, कभी तो आप सर बोलते हो ये मेजर है, कभी बोलते हो वो मेजर है, तो पहले तो पोजीशन क्लियर होनी चाहिए ना, राइट माय डियर? ओके, हाँ और बोलो, चलो ब्रेक द साइलेंस, और बोलो बच्चों, और क्या प्रॉब्लम है? एक दो और एग्जांपल लूं या सही है यहाँ तक? बोलो। सर एग्जाम Why not? If not, then we have to mention more precise examples. Let's talk about some more precise examples. ठीक है, अल्फा बीटा गामा कर लिया हमने, ठीक है? चलो इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, साइकिल बना लेता हूँ, क्यों भाई? है ना, ये मैंने साइकिल बनाया, ठीक है, ये मैंने कीटोन बनाया, ठीक है? इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, कोई सी भी आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो, चलो इसके रेस्पेक्ट में बताओ पहले तो, ये हो गया यहाँ पे ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है बच्चे? अब ये क्या बन गया, इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड राइट कीटोन, यस और नो? समझो आप आराम से, एक एग्जांपल काफी रहेगा रेस्टेशन। हाँ, बना या नहीं बना? अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब जब आपने बोला कि अनसैचुरेटेड कीटोन है, मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ व्हाट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड, भाई कौन सा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, व्हाट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट स्पेसिफाई द गामा। पोजीशन। हाँ तो बस हो गया खत्म यार, बीटा गामा। देखो आपने बोला, अब आप सर करोगे बट कि ये सर तो मैं, हाँ मैं समझ गया क्या पूछोगे अब। आप पूछोगे सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किया? काउंटिंग हमेशा उस साइड से करनी है जो नियर बाय पड़े, राइट? नियर बाय पोजीशन से काउंटिंग करनी है, तो आप क्या काउंटिंग करोगे बताओ? ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? चलो मेंशन किया कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अल्फा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप, रेडी? तो ये हो गया अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा। अब आप इधर से भी आ सकती हो, है ना, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें पोजीशन क्या स्पेसिफाई करनी है कि जहां से नियर बाई होगा डबल बॉन्ड, उसी साइड से 1 2 3 4 करना है, या फिर अल्फा बीटा गामा करना है। आई बात समझ? तो ये केस किसका है? साइक्लिक का है। तो क्या हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा बोलो? बीटा गामा, नेम बताओ जरा पूरा भी, चलो बीटा, यस प्लीज बीटा, we can separate it with the help of a comma, beta gamma, yes my dear, beta gamma unsaturated, yes please, beta gamma unsaturated, okay ketone, yes or no? अभी मैं उसके आईयूपीएससी नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पोजीशन, दैट्स इट, क्योंकि आईयूपीएससी बताऊंगा अभी मैं, पहले पोजीशन तो स्पेसिफाई होना यार, व्हाट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज दिस बाय द वे, भाई अनसैचुरेटेड तो अल्फा बीटा भी हो सकता है, राइट डियर? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो जब भी अल्फा बीटा करना है कुछ नहीं करना, बस नियर बाई जो कार्बन होगा, जो नेबर होगा, ऑलवेज भी अल्फा, दैट्स इट, एंड नेबर का नेबर बीटा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर नेबर का नेबर, नेबर का नेबर, पूरी चेन बन जाएगी, कुछ नहीं करना। आई बात समझ? तो इफ यू टॉक अबाउट गामा एप्सिलॉन, राइट,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, तो हम जा सकते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, आप कितनी बड़ी पोजीशन कर लो यहाँ पे, कोई इशू नहीं, बहुत इजी है। ओके माय डियर, ठीक है। चलो भाई, मैंने यहाँ इस बार एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेडी? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है, ये मैंने एल्कीन यहाँ पे बना दिया है। चलो बताओ क्या नेम होगा इसका? हम टॉकिंग अबाउट पोजीशन ओनली, है ना? तो क्या नेम हो जाएगा? ये हो जाएगा माय डियर अल्फा, क्योंकि रेस्पेक्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन ग्रुप एक ही है, तो वी डोंट हैव एनी चॉइस। सो अल्फा बीटा, यस माय डियर, गामा हियर इज, डेल्टा हियर इज एप्सिलॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा? डेल्टा एप्सिलॉन अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, यस और नो? बोलो प्लीज। पोजीशन मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो वो तो बहुत Yes, इजी sir. हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज क्वाइट इजी नाउ, ठीक है। तो प्लीज, मैं बहुत सारी पोजीशन मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है ऑलरेडी। मैंने कहाँ से शुरू किया था? मैंने डिग्री से शुरू किया था, अगर आपको याद हो, राइट? डिग्री से मैं आ रहा हूँ पोजीशन बताते हुए, राइट? मोर देन ए डोजन पोजीशंस को मैं स्पेसिफाई कर चुका हूँ सो फार, ठीक है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, रिमेंबर, है ना? और आज मैं आपको साइक्लिक, स्पाइरोसाइक्लिक वगैरह के सब एग्जांपल करवाने वाला हूँ। तो प्लीज आप मुझे यहाँ तक बता दो जल्दी से, यस और नो। इफ यस, देन वी कैन प्रोसीड नेक्स्ट। इफ नो, वी हैव टू टेक सम मोर एग्जांपल। यस सर। Yes. यस है ना? ठीक है, बस फिर हो गया यार। यस सर। ऐसे बोला करो आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे बढ़ो तुरंत फिर, विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। सो आफ्टर दिस स्पेसिफिकेशन, राइट माय डियर, नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट इज द ड्राइव्ड नेम सिस्टम। चलो, तो ये फर्स्ट नेम सिस्टम मैंने कंप्लीट किया, जिसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉमन और ट्राइवियल नेम सिस्टम। आई होप सो समझ में आया होगा सब अभी, है ना? जो डाउट्स है, ठीक है, रहने दो, आप मुझे बताते रहोगे डाउट्स है। ओके माय डियर, नोट देम डाउन, ठीक। चलो, क्योंकि जितना आप डाउट को एक्यूमुलेट करते जाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल अपना क्लियर कर लो माय डियर, ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। ओके माय डियर, so next one is, that is second one, so hurry up please। second में क्या हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट? that is the derived name system। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको बस अभी 2-4 लाइन में फिनिश कर देंगे। derived name system, as the name indicates, derived means कोई नेम होगा तो किसी से डिराइव हुआ होगा, ओके, कोई रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए कंपाउंड जिससे वो बना होगा। तो ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है, ओके माय डियर। चलो अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ, काफी रहेगा। हाँ ठीक है, तो चलो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, ये टेबल मैंने बना लिया जस्ट लाइक दिस। ओके माय डियर, चलो फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। ये यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज होमोलोगस सीरीज, homologous series। I hope so now you are familiar what is meant by the term homologous by the, Yes, sir. है ना? That is repeating unit, that is CH2, CH2 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 जितना ज्यादा रिपीट होता जाएगा homologous series बनती जाएगी, ठीक। तो मैंने समझाया था कि इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नोन है, आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लेंथी है क्यों यार? मोर देन ऑर्गेनिक 10,000 कंपाउंड्स आर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एडिड। कैटिनेशन की वजह से सर। Yes, catenation, and another reason is homologation। ऑर्गेनिक क्यों भाई? सर, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी तो। Yes, indeed. Why not? Organic spectroscopy is the heart of organic chemistry with respect to the identification. बट आपका लेवल अभी छोटा है ना बच्चे, तो अभी आपको नहीं पता उसका, और वो है भी नहीं आपके सिलेबस में। बट जब आप जैसे रिसर्च करोगे, किसी भी कंपाउंड को बताओगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ठीक है। एनीवे, सो होमोलोगस सीरीज, ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव, कौन रिप्रेजेंट करता है उसको? रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कंपाउंड, ओके। एंड नाउ स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये ड्राइव सिस्टम है, मतलब कहाँ से ड्राइव हुआ, आपको आइडिया कहाँ से मिला कि एल्केन है? क्यों भाई, आपने अगर नेम एल्केन दिया है तो आइडिया कहाँ से मिला आपको, कहाँ से ड्राइव किया? दैट इज नोन एज ड्राइव्ड नेम सिस्टम। सो इट इज क्वाइट सिंपल। सो जैसे इफ यू टॉक अबाउट द होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट वन दैट इज अल्केन, राइट माय डियर, अल्केन। सो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड था उसका, दैट इज मीथेन।
यहां से आइडिया आया था, राइट। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिस वन, मेथ फॉर सिंगल कार्बन एंड एन फॉर सिंगल बॉन्ड, क्लियर। तो ये ड्राइव सिस्टम है। एल्केन के बाद एल्कीन पे आ जाओ आप। सो एल्कीन का आइडिया कहां से आया, इथाइलिन से आया। चलो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इथाइलिन से आ गया, तो इथाइलिन का क्या हो जाएगा, दिस वन, है ना डियर। तो यहाँ से उनको आइडिया मिला तो उन्होंने सीरीज बना दिए जो नोमेनक्लेचर वाले थे। नाउ अल्काइन, ओके, अल्काइन का किससे आ जाएगा, दैट इज एसिटाइलिन। यस, एसिटाइलिन, ओके डियर। सो दिस वन इज द एसिटाइलिन। सो ये ड्राइव्ड नेम सिस्टम है, ठीक। चलो एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। फोर्थ वन, अल्डिहाइड कहाँ से आया, या फिर अल्कोहल, अल्कोहल किससे ड्राइव हुआ, कार्बिनॉल से। इसका नाम पहले कार्बिनॉल था। मतलब हमने कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, सब लिया हुआ है। अब लास्ट बचेगा आईयूपीएसी, वो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, वेट अ बिट, ठीक है। कार्बिनॉल, कार्बिनॉल कुछ ऐसा होता है ना डियर, ये बस यहाँ पे आप चेंज करते जाओ पोजीशन। तो ये सब क्या है, जो अटैचमेंट आपको शो कर रहा हूँ मैं, ये सारा अटैचमेंट क्या है माय डियर, रेडिकल है वो, ओके। अब रेडिकल एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ रेडिकल यू आर टॉकिंग अबाउट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, राइट, विथ सम स्पेसिफिक कार्बन यूनिट, जैसे प्रोटोन बताया ना मैंने भी, सिनेम, ठीक। तो काफी रेडिकल केमिस्ट्री काफी ज्यादा होगी। आई मीन मैंने कुछ भी एस्पेक्ट इसमें एस्केप नहीं किया, मैंने ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर लिया जो मेजर मेजर पोर्शन था, ओके। तो काफी रहेगा इतना, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। देन अल्डिहाइड, चलो फाइनल कर लो। अल्डिहाइड, ओके, अल्डिहाइड बना था दैट इज एसिटल्डिहाइड से, ओके। मतलब ये इसका फर्स्ट सीरीज है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से बना था, सो दिस वन इज दैट इज CHO, राइट। ये एसिटल्डिहाइड है जस्ट लाइक दिस, ओके माय डियर। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज कीटोन, ठीक है। कीटोन किससे बना, एसीटोन से, ठीक। कीटोन बना एसीटोन से, चलो फिनिश हो गया, दिस वन, ओके, लाइक दिस, ओके। फिर यहाँ पे मैं कार्बन लगा सकता हूँ, और तो ये कार्बन इस टाइप से हो जाएंगे, है ना डियर, बिकॉज ईच एंड एवरी कार्बन एटम टेट्रावेलेंट इन नेचर, दैट इज टेट्राहेड्रल। इज दैट ओके, ठीक है, समझ में आ गई सारी बात चल क्या रहा है। तो आईपीएससी शुरू करते हैं फिर, है ना डियर, ठीक है, शुरू करें आईपीएससी। यस हाँ, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आइडिया हुआ कि नहीं, आपको आइडिया हो गया ना Yes, पूरा, sir. कि एक्चुअली नोमेनक्लेचर एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, चाहिए क्या हमें, व्हाटएवर सब कुछ। तो आप इसको एक बार थोड़ी रिवाइज करो। देन वी विल टॉक अबाउट दैट इज कंपैरिजन इन बिटवीन ट्राइवियल नेम, ओके, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम कभी कभी जेनरिक नेम भी बोलते हैं, दैट इज अ टर्म इज आल्सो नोन एज दैट इज जेनरिक, ओके, जेनरिक भी बोलते हैं, जेनरिक नेम, राइट, ओके। देन सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आईयूपीएसी। सो कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, रेस्ट इश्यू, बस मुझे फॉर्मेलिटीज पूरी करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज क्योंकि किसी बुक में मैं कोई रेफरेंस भी तो नहीं दे सकता ना कि आप इस बुक से ये वाला चार्ट देख लो, कंप्लीट नहीं है कहीं भी, ठीक है। किसी में कुछ मिस है, इवन एनसीईआरटी भी इनकम्प्लीट है विद रेस्पेक्ट टू द आईयूपीएससी। जिस लेवल के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में और एडवांस में आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि नीट का काफी कुछ क्लियर हो जाता है एनसीईआरटी से, मैं तो बोलूंगा कि अप टू 60% नीट क्लियर हो जाता है, राइट, एनसीईआरटी से। बट एडवांस में हमें एनसीईआरटी नॉट मोर देन सफिशिएंट इनफ, उसमें वही 40% के राउंड ही हम कवर कर पाते हैं, 40-50, ठीक है डियर। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, तो प्लीज आप उसको एक बार क्लियर कर लो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एनसीईआरटी तो फर्स्ट स्टेप है। आपको जब भी डाउट होगा मैं पूरी एनसीईआरटी स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप मुझे पेज नंबर बोलना, सर इस पेज नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है जरा बता दो इसको, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ये एग्जाम दे लो जो भी चल रहा है ना, सो दैट हम थोड़ा फ्री हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में ले सकूं, ओके माय डियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम, दैट इज थर्ड वन, and this one is known as IUPAC, right? IUPAC, or that is also known as that is Geneva, remember?
तो मैंने मीटिंग्स बताई थी पहले कि जेनेवा क्यों बोला इसको, जेनेवा नेम सिस्टम। ओके राइट। सो आज जो इसमें आई मीन कुछ बच जाएंगे चार्ट, तो मैं ऑलरेडी उन चार्ट्स को इसमें बना दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा वक्त बच जाएगा हमारा, और फिर सीधे हम एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे यहीं पे ऑन द स्क्रीन। ओके माय डियर, है ना, ठीक है। तो आप उसका कॉमन नेम भी बता दे रहा ना, मैं आईयूपीएससी नेम बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आईयूपीएससी मैंने ऑलरेडी बताया आपको, राइट, यू नो वेरी वेल आईयूपीएससी, दैट इज आईयूपैक नोमेनक्लेचर इक्वल टू, यस प्लीज ब्रेक द साइलेंस नाउ, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफिक्स plus Plus word root word plus root suffix. plus suffix. word root plus suffix, that's it. And we can further divide as, yes, my dear, Secondary, secondary, primary, primary, secondary prefix, then primary, primary prefix plus word root, है ना, plus word root primary, Primary. plus primary. प्राइमरी, यस इंडीड, ठीक है। फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं कुछ बच्चे आज, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। देन प्राइमरी, यस प्लीज, सफिक्स, secondary, sir. एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ओके माय डियर, सो अभी मैं इनके ही चार्ट्स बनाऊंगा, बस मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बना के दे देता आपको, बट मुझे समझाना भी पड़ता है ना, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। एनीवे कोई इतनी जल्दी में नहीं है अभी। सो शुरू कहां से होता है यूपीएससी, सेकेंडरी से स्टार्ट होता है और सेकेंडरी पे फिनिश होता है, दैट्स इट। और ये बात आपको पता है कि जो भी माय डियर सफिक्स होता है दैट इज द एंड पॉइंट, यस और नो माय डियर। सफिक्स मींस वी हैव टू पुट एट द एंड, राइट, सबसे लास्ट में तो लिखते हो आप उसको, तो वो क्या सफिक्स है। ओके, व्हाट अबाउट द प्रेफिक्स बाय द वे, स्टार्टिंग पॉइंट, क्यों भाई स्टार्ट यहां से करना है ना, शुरुआत कहां से हुई है, सेकेंडरी प्रेफिक्स से, और एंड कहां पे हुआ, सेकेंडरी सफिक्स पे, राइट। सो नाउ इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, अटेंशन माय डियर, थर्ड। ओके, वर्ड रूट तो सबका क्लियर है, इसमें तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, याद है ना सबको, मेथेस, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, राइट, ठीक है। सो ये तो पहले ही क्लियर है हमारा। ओके माय डियर, व्हाट अबाउट द वर्ड रूट, वी हैव टू यूज मेथेस, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ओके, सो दिस वन इज द फिफ्थ, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो नंबर 1, दैट इज सेकेंडरी, यस प्लीज, प्रेफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रेफिक्स बताता क्या है, एक एक लाइन सबकी हो जाए। दीज आर नॉट, चलो मैं ही लिखूं या मैं बोल रहा हूं आप लिखो, एक लाइन लिखो प्लीज, लिखना। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, दीज आर नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज, यस माय डियर, फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप की तरह हम ट्रीट नहीं करते इनको, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। बट किस सिस्टम में ट्रीट नहीं करेंगे फंक्शनल ग्रुप, आईयूपैक सिस्टम में। बाकी तो ये फंक्शनल ग्रुप है माय डियर, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। ओके, बट, यस प्लीज, बट आर रिगार्डेड एज substituents, ऑलराइट माय डियर। सो इनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। किसमें, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। इज दैट ओके, इतनी छोटी सी बात थी। सो ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूँ अभी आपके लिए, राइट, इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, राइट। मैं एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ, ठीक है, राइट माय डियर। तो प्लीज पे अटेंशन, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा एंड टू एंड, तो आप मुझे नेम बताते रहोगे। हाँ, लेट मी रिपीट वंस अगेन, एल्केन के लिए क्या यूज करते हो, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सफिक्स, एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन। ओके, राइट, क्लियर है ये बात। बाकी आपको पता ही होगा, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ एंड 3 के लिए
prop and so on so forth, method, prop, but, paint, सबको पता है। फंक्शनल ग्रुप को भी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अब तक, राइट, कॉमन नेम सिस्टम में। सो मैं यहाँ पे नेम भी मेंशन करूंगा, ठीक है ना, सिर्फ चार्ट ही बनाऊंगा मैं, नेम भी विद एग्जांपल। सो प्लीज आप एक टेबल बना लो, मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी से सबके सब। ओके, सीरियल नंबर, राइट, सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाओ जल्दी से, सब्स्टिट्यूएंट, राइट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप ले रहे हो, मैं थोड़ा स्पीड अप मैंने में लिखूंगा, आप भी लिखते रहो प्लीज। देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा दैट इज सेकेंडरी प्रेफिक्स, ऑलराइट माय डियर, सेकेंडरी प्रेफिक्स में यूज करने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे मैं लूंगा लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, जब तक आप यस नहीं बोलोगे मैं एग्जांपल लेता रहूंगा, ठीक, वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कितने एग्जांपल चाहिए, ठीक है माय डियर। ओके देन, सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एग्जांपल्स, एग्जांपल्स और हिंट्स, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है, तब देखते हैं आप कितना बताते हैं। ओके, एग्जांपल्स और हिंट्स, नाउ लेट्स बिगिन। Okay dear, so first kind of that is substituent would be, yes my dear, that is halogens, है ना, यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ halogens X। अब जो halogens होते हैं my dear, है ना, प्रेफिक्स यूज कर देना, प्रेफिक्स, है ना, तो halogens में क्या होगा, आप यूज करते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इन नॉर्मल नोमेनक्लेचर। प्लीज लिसन केयरफुली, जब हम इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल कॉमन नोमेनक्लेचर, then we have to use, yes my dear, fluoride, chloride, bromide, iodide, ठीक है। but when we talk about IUPAC system, we have to use my dear, that is for F, है ना, फ्लोरो, क्या बोलोगे इसके बारे में, बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी मेंशन करो, फ्लोरो। ओके, और देखो मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ डैश, इस डैश का मतलब समझते हो, कि पहले ये लिखा जाएगा, इसके बाद में क्या आएगा, बोलो, बाद में क्या आने वाला है, एनी काइंड ऑफ रेडिकल। ओके माय डियर, प्रेफिक्स का मतलब क्या है, स्टार्टिंग इसी से करनी है ना, आर यू गेटिंग माय डियर। तो देखो मैंने डैश कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, कि पहले आपको फ्लोरो मेंशन करना है, उसके बाद में दैट इज रेडिकल यूनिट। ओके देन, सो लेट्स मूव इट, जल्दी जल्दी करो। फ्लोरो के बाद कौन आएगा, बोलो, क्लोरो, है ना, हरी अप, क्लोरो, देन ब्रोमो, not bromide, not chloride, not fluoride, we are talking about IUPAC name, right, so bromo आ जाएगा। then up next my dear that is iodo, आइडो, क्लियर होगी बात। चलो एग्जांपल ले रहा हूँ मैम, यहाँ पे नेम बता दो प्लीज, हाँ बोलो भाई, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड, है ना। बट इफ यू टॉक अबाउट द IUPAC सिस्टम, देन स्टार्ट कहाँ से करना है, अभी तो बोला, प्रेफिक्स से शुरू करना है। और कौन से प्रेफिक्स, वी आर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी प्रेफिक्स। सो नेम क्या हो जाएगा माय डियर, दैट इज क्लोरो बेंजीन, ऑलराइट, क्लोरो बेंजीन हो गया, है ना। इसका क्या हो जाएगा, CH3I, चलो बताओ नेम, जल्दी जल्दी बताते रहो प्लीज, ब्रेक द साइलेंस, ठीक है ना, क्योंकि उतनी स्पीड से फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, मुझे पता तो चलेगा समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलो प्लीज नेम, I'm talking आइडो, आइडो, देन इथेन, मीथेन, मीथेन सर, मिथाइल। मिथाइल नहीं माय डियर, मिथाइल नहीं, ठीक है। सचिन, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करना है, सचिन बताएगा। आइडो, यस प्लीज, फॉर वन कार्बन वी हैव टू यूज मेथ, रिमेंबर, हाँ, and for single bond we have to use N, so iodomethane, yes or no my dear, है ना। अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वापस आऊंगा मैं बड़े बड़े नेम के साथ, ठीक है, अभी तो छोटे छोटे नेम चल रहे हैं। सो हो गया आयोडोमीथेन। वन कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, मेथ, पता है या नहीं, मैंने कितनी बार मेंशन कर दिया भाई, वर्ड C1 C2 C3 C4 C5, यस सर, यस है ना। सर, मेथेड, प्रोब्यूट, पेंट, हेड्स ऑफ, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, 12 तक मेंशन किया था। फिर एनीवे कोई बात नहीं, मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अभी तो मैं सिंपल सिंपल से दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या हो जाएगा भाई बच्चे, सेकंड क्या होगा, दैट इज NO2। NO2 के लिए हम यूज करेंगे दैट इज नाइट्रो, क्या यूज करेंगे, नाइट्रो,
ओके, चलो एग्जांपल लो. व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? एज ऑलरेडी मेंशन्ड, नंबर ऑफ टाइम्स. बोलो प्लीज. नाइट्रो. ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी प्रेफिक्स को हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है. दैट्स इट. क्लियर है बात? तो नाइट्रोबेंजीन. क्या हो जाए? नाइट्रोबेंजीन. कुछ भी नहीं है वो. नाइट्रोबेंजीन. यस माय डियर. अब नेक्स्ट, दैट इज थर्ड वन. थर्ड वन इज NO. दिस वन, इसको यूज करेंगे हम. दैट इज नाइट्रोसो. क्या यूज करेंगे? नाइट्रोसो. किसी भी लेवल के ऑर्गेनिक पढ़ लेना, अब लेवल मैटर नहीं करता. ठीक, हमने सारे फंक्शन ग्रुप मेंशन कर दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब. इवन इतने तो किसी बुक में एक साथ है भी नहीं. सो नाइट्रोसो. ओके, नाउ वी हैव टू यूज नाइट्रोसो फॉर NO. ठीक है, चलो नेम बताओगे. प्लीज पे अटेंशन बच्चे, पे अटेंशन. हाँ बोलो. N, हियर इज डबल बॉन्ड O. कौन बताने वाला है इसका नेम? सोहानी बताएगी. हाँ चलो सोहानी बताओ. सबसे पहले क्या लिखना है? आगे बंद, लिख दिया, शुरू हो गए. नाइट्रोसो. कहानी खत्म. अब आगे भाई IUPAC वाले कि भाई कितने कार्बन है. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? 2. इथेन, नाइट्रोसो इथेन. सिंपल है, कुछ भी नहीं है. नाइट्रोसो इथेन हो गया, खत्म. और क्या था ये? लो जी, नाइट्रोसो इथेन. फॉर 2 कार्बन यूनिट वी हैव टू यूज 8th, and here is, that is single bond in this radical system. As already mentioned a number of times, we have to put lone pairs at heteroatom. Please remember, है ना? मैंने बोला था और एग्जांपल दिया था. ओके, कि विदाउट अ क्राउन को उसको प्रिंस नहीं बोलेगा जो प्रिंस होता है. ऐसे ही विदाउट लोन पेयर उसको हेटेरोएटम नहीं बोलोगे आप, वो है ही नहीं रियल में हेटेरोएटम. ओके, तो हेटेरोएटम पे हमेशा क्या करना है आपको? लोन पेयर शो करना. Okay, my dear. Up next, fourth one, right? Fourth one is, that is OR. This one is known as alkoxy. क्या बोलोगे? alkoxy. एग्जाम्पल लेते रहो. ठीक है, चलो माय डियर, मैंने यहाँ से एग्जाम्पल ले लिया है. दैट इज OME. क्या नेम होगा? मेथऑक्सी. सो नेम वुड बी मिथॉक्सी. रिमेंबर? OET. How many carbon atoms are there? 2. So we have to put 8th. And now oxy, ethoxy. ठीक है? Are you getting? Now OPR. बोलो बच्चे नेम. Pro. That is, हाँ बोलो. प्रॉक्सी. Prop लगेगा ना? Prop for 3 carbon atom. And now we have to put oxy. So it is propoxy. All right. Methoxy, ethoxy, propoxy, butoxy, pentoxy, hexoxy. Okay. तो सीरीज एक बार पकड़ ली तो कहाँ रुकेंगे हम जाके? 12 तक. मतलब मैंने एक नेम दिया और 11 बाकी रहे. ठीक है, तो 12 तक जाना है हमें. समझ गए आप? मेथेट, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डो डेक. चलो मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूंगा जिन स्टूडेंट को नहीं पता व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैं एक बार कार्बन चेन मेंशन कर दूं. रेस्ट इश्यू. ओके माय डियर, आफ्टर दैट इज 5th नंबर. प्लीज पे अटेंशन. मैं एग्जांपल फिर से लेने वाला हूं और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये चल क्या रहा है यहाँ पे. ठीक है, प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब आप आराम से कर सकते. रेडी? 5th वन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट R. ठीक है, ये इतनी बड़ी टर्म है कि आधा ऑर्गेनिक क्या सारा इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कितने हैं? बहुत थोड़े से फंक्शन ग्रुप हैं. बट जो रेडिकल सिस्टम है, यू नो वेरी वेल, राइट? वास्ट वैरायटी. इतनी वैरायटी है मेरे पास रेडिकल की. हाँ माय डियर, तो इसको क्या बोलोगे आप? बेसिकली आप इसको अल्काइल बोल देते हो, है ना? बट ये अल्काइल नहीं होता. क्या होता है ये? अल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, बहुत कुछ होता है ना. तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. अब तो समझ में आता होगा सब. तो इसको हम कंबाइनली क्या बोलेंगे माय डियर? वी कैन कॉल इट एज, यस माय डियर, रेडिकल. सो मुझे क्या मेंशन करना है? नेम ऑफ रेडिकल. एम राइट? तो शुरू हो जाओ फिर. क्या बोलोगे इसको? बोलो प्लीज. है ना? ये समझ में आता होगा ना? Me फॉर मिथाइल आता है ना समझ? माय डियर, CH3 को तो Me बोलते हैं. ओके, इथाइल किसको बोलते हो? CH2CH3.
अब तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो, इसको क्या यूज करोगे? मिथाइल, ये सब मैं मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, रिमेम्बर? जल्दी बोलो यस और नो। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, यस यस सब सर। क्लियर है? बस तो फिर यार कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से इसको पुट कर सकते हो। ओके माय डियर, दिस वन इज द इथाइल। तो मुझे थोड़ा सा स्पीड पकड़ने दो, ठीक है? चलो, ये तो मैंने यहाँ पे बोल दूंगा मैं कि सो ऑन सो फोर्थ, आप सारा मेंशन कर दो जो आपको करना है, ठीक है? सो व्हाट अबाउट इट बाय द वे, TBU, बोलो क्या नाम इसका? टर्शरी ब्यूटाइल, हाँ या ना? यस और नो? टर्शरी ब्यूटाइल। ओके माय डियर, फिर यहाँ से मेंशन कर लो वही अपने नेम। चलो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन करूँ या नेम मेंशन करूँ, क्या मेंशन करना है? कहाँ से शुरू करना है बोलो? विनाइल से शुरू करना है। फिनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, बेंजाइल, रेडी? ठीक है सब। तो नेम लिखूं या स्ट्रक्चर लिखूं, क्या लिखना है मुझे? कितनी बार मैं रिपीट करवा चुका हूं। व्हाट इज इट? विनाइल। व्हाट अबाउट इट? एलाइल। ओके, एंड नाउ व्हाट अबाउट इट? बोलो प्लीज। दिस वन इज, दैट इज विनाइल। दिस वन इज माय डियर एलाइल। व्हाट अबाउट इट? प्रोपरगाइल। प्रोपरगाइल। What about it? PH, CH2, and this one, that is benzyl. So अगर रेडिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो गई ना, बस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम रहने वाली है। सो प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ठीक है डियर? ओके, सो आप क्या करोगे? आज का जितने लेक्चर हो गया, 5th लेक्चर आई थिंक ऑर्गेनिक का। ओके, एक कल होगा, 6 हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मैं आई मीन हम लोग ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे, तो आप एक बार इस लेक्चर को फिर से देख सकते हो, ठीक है? ओके माय डियर, राइट? सो एक बार फिर आप इसको एक बार देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है, नोट दैट डाउन, ओके, एंड लेट मी नो, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। सो ये हो गया सारा पूरा तुम लोगों का, दैट इज। चलो एक दो पॉइंट इसमें और बाकी है, और ये माय डियर चलता जाएगा सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि मैंने रेडिकल केमिस्ट्री पूरी एक्सप्लेन की है, रिमेंबर? ठीक है? सो विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, बेंजाइल, ठीक है, और सारी मेंशन की है मैंने, और भी काफी कुछ मेंशन किया। एनीवे, सो एक और मैं आपसे एग्जांपल देके पूछता हूँ या क्वेश्चन कर लेता हूँ। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? चलो, ये हो गया बेटा क्वेश्चन। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? सबसे पहले CN लिखा है मैंने यहाँ पे, बोलो। फिर मैंने एक और नेम दे दिया है CH3CN, बोलो। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? प्लीज ब्रेक द साइलेंस, बोलो। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? हम हाईलाइटिंग हियर, प्लीज पे अटेंशन। जल्दी से बता दो, बस मैं इस चार्ट को पूरा करना है ना मुझे भी। हाँ, व्हाट अबाउट द नेम? अरे भाई शुरू करना है हमें यहाँ से, ये रहा, है ना? क्या लिखोगे इसको? साइनाइड। या तो नाइट्राइल, साइनाइड लिखो, यस। तो ये इसका हो जाएगा, दैट इज साइनो, मेंशन किया था ना थोड़ी देर पहले, है ना? तो साइनो बेंजीन हो जाएगा ये, एम राइट? ऑलराइट, व्हाट अबाउट इट? अब अपने एसिड वाले नोमेनक्लेचर पे भी आ सकते हो आप। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? 1 2, क्या लिख सकते हो? साइन। एसिटो नाइट्राइल, यस माय डियर, लिख सकते हो ना? और IUPAC वालों ने बात सुन ली कि नहीं भाई हमें तो IUPAC नेम चाहिए, IUPAC वाले बोलेंगे क्या लिखोगे? साइनोमिथेन। हाँ मिथेन, सॉरी मिथेन नहीं, सर, वो मिथेन गलती से बेटा, साइनो। मिथेन। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सारी गलती माफ है सब, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ रोज गलती करो, मैं बैठा नहीं यहाँ पे, क्यों भाई? मैं सुधार दूंगा सब, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, क्योंकि साइनो मैंने ऑलरेडी नेम ले लिया है ना। ओके माय डियर, सो जब मैंने साइनो ऑलरेडी नेम ले लिया तो मेंशन कर दिया मैंने उसमें कार्बन, दैट्स इट। आई होप सो नाउ इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव हेड। अब कौन सा नंबर है भाई, और कुछ बचा है इसमें? हाँ एक दो और बचे, इनको कंप्लीट करो प्लीज जल्दी से। आई होप सो वी आर यू गेटिंग वेरी वेल नाउ? ओके, सो मैं इसको आगे बढ़ा के जा रहा हूँ। सो कौन सा नंबर है, कहाँ तक हो गया? 5th। ओके नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट 6। ओके, 6 नंबर पे आएगा दिस वन, एंड डबल बॉन्ड N। यस माय डियर, व्हाट अबाउट द ग्रुप? इट इज नोन एज एजो। क्या आ गया ये? एजो, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे एक डाई बना सकता हूँ, है ना, PH, हियर इज द N, डबल बॉन्ड N, ऑलराइट माय डियर, हियर इज द PH, ओके। या फिर मैं इसको बेंजीन रिंग लिख सकता हूँ, चलो मैं थोड़ा बेंजीन भी लिख देता हूँ। मतलब मैं एक डाई बना रहा हूँ, क्योंकि एजो डाइज होती है ना, आप यूज करते होंगे डाइज, है ना डियर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिकल में डाइज ना बनाए, ठीक है, भर भर के बनाते हैं पूरा 100 ग्राम तक डाई बनाइए, ठीक है ना, लैब में। यस प्लीज। सो इसका नाम है माय डियर दैट इज रेड एजो डाई। तो ये जो नेम में ले रहा हूं एजो, सो बस यही कंडीशन है कि जहां पे भी ये ग्रुप मेंशन हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, राइट माय डियर, वी हैव टू कॉल इट एज एजो, ओके। बस इतनी सी बात है, ठीक है। मैं इसका IUPAC नेम भी पूछूंगा, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट इज सेकेंडरी प्रेफिक्सेस। लास्ट 7, okay then 7, what about it now, and triple bond N, बोलो इसको क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड माय डियर एज डाईएजो, इसका नेम क्या हो जाएगा? डाईएजो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो, दिस वन, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, सोच के बताने हैं प्लीज, थिंक अबाउट इट। नाउ इट इज क्वाइट इजी टू रिकॉग्नाइज द नेम, यस प्लीज टेक द साइलेंस। हाँ नेम प्लीज। सर सर डाई डाई कैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं? फिर मीथेन। बेटा अभी मैंने बोला है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द प्रेफिक्स। सर डाईएजोमीथेन। मीथेन मीथेन बस हो गया यार, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है, राइट, क्योंकि प्रेफिक्स का नाम पहले लेना है, सिंपल सी बात है। सो डाईएजोमीथेन, जो कभी देखा भी नहीं आप उसका नेम ले सकते हो, राइट। सर बट रेड एजो Okay. डाई में तो लास्ट में है एजो। डाईएजो नहीं, वो अलग चीज है, क्योंकि एजो ग्रुप में हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, डाइज में आता है, तो इसका IUPAC नेम यहाँ से नहीं लिया जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द IUPAC नेम ऑफ दिस, यहाँ से शुरू करेंगे हम अमीनो से, NN डाइमिथाइल, ठीक है। चलो मैं पहले इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं इसका नेम सिखाता हूँ आपको, ठीक है, राइट, वेट अ बिट। और यहाँ मैं पोजीशन भी मेंशन करूंगा माय डियर कि ये पैरा पे है, तो अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊंगा तो देखो आप सुनना जरा भी। हाँ, सो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। सो आफ्टर डाईएजो, क्लियर होगी बात? तो एक यहाँ से नेम रिएक्शन आती है माय डियर, जिसका नाम है डाईएजोटाइजेशन, और ये बनता कहाँ से है? MOP। If we talk about the MOP of it, method of preparation of it, then we have to use the process known as diazotization, right? No need to update please, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बताते रहता हूँ, अपनी तो 12th में तो सुननी है सारी और करना भी सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ दैट इज लिंक, ओके, नोन एज डाईएजो, राइट। So we can prepare it, we can make it with the help of the process known as diazotization. Okay, done. Okay, now 8. What about it by the way? चलो फिनिश करते हैं। याद है ये क्या बोला था इसको? इपॉक्सी, याद है या नहीं है? बोलो। अब IUPAC नेम बता दो प्लीज इसका। ओके माय डियर, बोलो जरा। What about the IUPAC name of it? मैंने भी क्या यूज किया है? इपॉक्सी। तो करना क्या है? लिख देना है इपॉक्सी। अब सोचना है भाई अब करना क्या है? नाउ वी हैव टू काउंट, यस माय डियर, नंबर ऑफ एटम्स, राइट, कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन रेडिकल। तो रेडिकल होता क्या है? कुछ भी नहीं है रेडिकल, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिमेनिंग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितनी बार मैंने बताया? आर यू गेटिंग? सो नेम प्लीज। इथॉक्सी तो हो गया प्रीफिक्स, ये तो फिक्स है। इथॉक्सी, नाउ व्हाट? आगे क्या? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? बोलो। 1 and 2, 2 है या नहीं है? सो वी हैव टू पुट 8, सिंगल बॉन्ड है पूरे में, एन, तो हो गया इपॉक्सी इथेन। हाँ या ना? ओके। अरे भाई समझ में आता है कुछ? हाँ, थक गए हो बहुत ज्यादा? यस सर। क्या थक गए हो या समझ Yes, में sir. आया? मतलब नहीं 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 कार्बन। सर, समझ आता है, थके नहीं है। सर अच्छा, समझ आ रहा है। हाँ समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्लोली स्लोली इसको कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, ठीक है।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 1 पे हूँ, अभी मैंने अभी कंबाइन नहीं किया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, एक एक फंक्शन ग्रुप को लिख रहा हूँ मैं, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, 2-2, 3-3 फंक्शन ग्रुप का एक कंपाउंड बनाऊंगा और उसका नेम लूंगा, दैट्स इट। उसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। तो पहले तो आप इंडिविजुअली समझो डियर, ठीक है, मैं स्लोली कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। चलो अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम बता दो, चलो जाते जाते, चलो प्यारे बच्चों, देखा जाएगा आज, देखते क्या बताते हो, और सारा दिमाग लगा दो आज, ठीक है। चलो इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, आईयूपैक। मुझे पता है थोड़ा सा समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ आईयूपीएसी सिखाया नहीं है कि भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट और ऑन प्रीवियस नॉलेज, जितना हमने अब तक पढ़ा है। चलो शुरू करो बच्चों। हाँ तो फिर शुरू करो। ये पैरा पोजीशन है, क्लियर है। पीएच को क्या बोलते हो, फिनाइल, इसका नाम क्या है, एजो। ये क्या है, डाइमिथाइल। नाइट्रोजन को क्या बोलते हो, नाइट्रोजन को क्या बोलते हो, एमीन। हाँ या ना, शुरू करो फिर। तो क्या नेम हो जाएगा, पोजीशन मेंशन कर दो पहले। पैरा, अटेंशन प्लीज, N, डाइमिथाइल। पहले सुनना है केयरफुली, पहला आईयूपीएसी नेम, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सो ये N क्या है बाय द वे, हमने शो किया है, मैंने भी क्या मेंशन किया था कि जब भी आईयूपीएसी होगी, यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन। सो नाइट्रोजन पे 2 टाइम्स लगा है मिथाइल, इसलिए मैंने 2 बार बोला N, राइट, मतलब नाइट्रोजन पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है। सो N डाइमिथाइल, रेडी, ठीक है, N डाइमिथाइल। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, एमिनो है या नहीं, या तो यस या तो नो। एमिनो बोलते हो ना, ठीक है, एमीन एमिनो दोनों बोलते हैं, मैं मेंशन करूंगा कब एमिनो यूज करना है, कब एमीन यूज करना है, ठीक है, एमिनो। हाँ जी, अब आ गया फंक्शनल ग्रुप दैट इज नोन एज एजो, ये रहा एजो, इसमें अटैच थे बेंजीन, नाम ले दिया बेंजीन। चलो भाई, तो एकदम क्यूट सा नेम है, एज यू आर, ठीक है, अभी बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है, ये बस मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है बच्चे, मैंने कोई रूल रेगुलेशन कहाँ बताया, काउंटिंग नहीं बताया, कुछ नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया आया होगा कि हाँ भाई पैरा पोजीशन क्या होती है, समझ में आया होगा। एन क्यों मेंशन किया, राइट, क्योंकि आईयूपीएससी में पोजीशन स्पेसिफाई करना मस्ट है, ठीक है डियर, कि भाई 2 टाइम्स लगा है। 3 मिथाइल्स होते में क्या लिखता, N, रेडी। चलो CCl4 का आईयूपीएससी नेम बताओ, वाइंड अप किया, लास्ट एग्जांपल है बच्चे, लास्ट एग्जांपल CCl4 आईयूपीएससी नेम बताया जाए प्लीज। चलो कॉमन नेम क्या होगा, लास्ट एग्जांपल है इन रियल सेंस। हाँ बच्चों बताओ, अगर नेम बता दोगे तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा, राइट, नेक्स्ट क्लास है, अदरवाइज फिर मैं छुट्टी बंद कर देता हूँ। हाँ बोलो, कॉमन नेम पे आते हैं, पहले क्या बोलोगे, टेट्रा क्लोरो, है ना एक तो, चलो अच्छा ठीक है, नेम बताओ, मतलब व्हाटएवर जो आपके माइंड में, चलो बताओ, फिर मैं हेल्प करता हूँ, बोलो भाई, 4 क्लोरीन है, अरे है या नहीं, सर टेट्रा क्लोरोमीथेन। हाँ एग्जैक्टली। सो ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया, राइट, बट मैंने क्या बोला कि ये मतलब स्पेसिफाई आपने पोजीशन को नहीं किया, ठीक है माय डियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को इस पे, शाबाश, कोई कुछ बोल रहा है, लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स, सी लिखना पड़ेगा पोजीशन में। 4 टाइम्स सी नहीं बच्चे, सी तो एक ही है ना, 1 है सी, है ना, कार्बन तो एक है, क्या मेंशन करना पड़ेगा, 1,1,1,1, अब आने वाली है नींद। अभी मैंने क्या बोला, वी मस्ट स्पेसिफाई द पोजीशन, एट विच पोजीशंस हाउ मेनी टाइम्स द सिमिलर ग्रुप अटैच्ड, राइट। सो कितनी पोजीशन है, एक ही तो पोजीशन है, कितने क्लोरीन है, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर, 4। सो 1,1,1 है ना, 1,1,1, दैट्स इट। अब आप नेम ले सकते हो, टेट्रा क्लोरो, यस प्लीज, मीथेन। आई होप सो कुछ समझ में आया होगा, राइट। तो अभी तो हमने शुरू किया है, तो मैंने अब डिस्कस किया आपके साथ में, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। कल मैं इसको फाइनल कर दूंगा, राइट, और आईयूपीएससी का आपको एक पूरा डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस सेट, ओके, इज दैट फाइन सो फार, ठीक है, यस okay then, so till then take good care of yourself, thank you so much for your kind attention, okay, Thank see you you, sir. tomorrow, ओके थैंक सर। यू सर। okay my dear, most welcome, bye bye.